اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایسا نام جس سے جو مانگو فوراً مل جائے، جیسا چاہو ویسا ہو جائے۔ میں سوچتا تھا کہ جب مجھے اسم اعظم ملے گا تو میں اپنے لیے ایک بڑا محل بناؤں گا، ایسا محل جو نہ کبھی کسی انسان نے دیکھا ہو، نہ کسی جن نے۔ دنیا بھر کے خزانے اس محل میں موجود ہیں اور میں نے وہ بنا بھی لیا، لیکن بعد میں ایک بات سمجھ آئی کہ اسم اعظم میں تو اس سے بھی بڑا خزانہ ہے۔ مجھے وقت میں سفر کرنے پر اختیار حاصل ہے۔ میں نے ہر نبی کے دور میں جا کر ان سے ملاقات کی اور ان سے کائنات کے انوکھے راز جانے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا دیکھی۔ مجھ پر صدیوں میں اتنے راز کھلے ہیں کہ میں شاید کسی کو نہ بتا سکوں۔ لیکن اب میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ اسم اعظم اور وہ راز میں کسی بڑے ظرف والے شخص کو دے دوں جو اس امانت کو سنبھال کر رکھے۔ یا اللہ، مجھے دکھائیں کہ یہ راز میں کس کو دوں۔ آئیے آئیے علامہ صاحب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ یہ کیسا نور ہے؟ تسلی رکھے، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ میرے پاس آپ کے لیے بہت امانتیں ہیں۔ سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ وہ اسم اعظم مجھے ایک صحابی جن سے ملا تھا۔ تم زندگی بھر اسم اعظم کے متلاشی رہے ہو۔ اگر تمہیں اسم اعظم کی تاثیر چاہیے تو اس کا ایک عمل ہے، بس وہ کر لو۔ اس کے بعد بس تم جب اس کو پڑھو گے، جو چاہو گے اللہ کے امر سے فوراً ویسا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اسم اعظم حاصل کرنے کے بعد جو دنیا تم پر کھلے گی اس کا اظہار ہر کسی سے نہیں کر سکو گے۔ ان رازوں کو چھپائے رکھنے کی کوشش کرنا۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی ایسا ملے جس کا ظرف اتنا ہو کہ وہ یہ راز قدردانی سے لے سکے تو اس سے چھپانا مت۔ آپ نے مجھے اس راز کا اہل کیسے سمجھا؟ آپ تسلی رکھیں، میں آپ کو ہر بات کا جواب دوں گا اور ہر امانت آپ کو دوں گا۔ آپ نے بتایا کہ اسم اعظم کی برکت سے آپ کو وقت میں سفر کرنے پر اختیار حاصل ہے۔ میرا ایک سوال ہے، ماضی میں بہت سی بڑی ہستیوں کے ساتھ بہت بڑے حادثات ہوئے، تو ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہم ماضی میں جا کر انہیں پہلے سے آنے والے حادثات سے آگاہ کر دیں؟ آپ کے اس سوال کے پیچھے کائنات کے کافی راز چھپے ہیں۔ میں نے ایک بار کوشش کی کہ میں ماضی میں جا کر ایک عظیم ہستی کو ان کی شہادت سے بچا لوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ کائنات کے نظام میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تم سے یہ نعمت چھین لی جائے گی۔ واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اصل میں یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ انہیں ایسے ہی ہونا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا پر راضی کر لینا ہی بہترین عمل ہے۔ جنہوں نے آپ کو وہاں روکا تھا وہ کون تھے؟ وہ تکوینی نظام کے لوگ تھے۔ دنیا میں آج تک جس کو بھی اسم اعظم ملا ہے اس کا تعلق تکوینی نظام سے ضرور ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان یا جن کسی ایسے عمل میں مداخلت کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے، تو ان ہستیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سدباب کریں، چاہے وہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مینار پر اترنا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس مینار کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تکوینی نظام کے یہ رجال الغیب ہر وقت اس مینار کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تکوینی نظام چوتھی زمین سے چلتا ہے،
ये जो जमीन हमें नजर आती है ये ऐसे नहीं है, बल्कि इसकी सतहें हैं और कुल 7 जमीनें हैं। आपको इसमें आज़म देने से पहले मैं चाहता हूं मैं आपको तकवीनी निज़ाम से जुड़े सारे राज बताऊं। आप मेरे साथ आएं, मैं आपको चौथी जमीन में ले जाता हूं। हर जमीन का अपना एक निजाम है, अपना आसमान है। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू। ये सामने जो आपको नजर आ रहे हैं ये औताद है, हादी चारों सिमतों के औताद। हर सिमत का एक वदद है। अल्लाह के अमर से इन्हें निज़ाम आलम के बहुत से अमूर को चलाने की इजाज़त है। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू। मैंने इनका तस्करा पहले भी कहीं पढ़ा है। इनके नाम का एक तावीज़ है, जो बंदा अपनी कोई हाजत इस तावीज़ के नीचे लिखकर दरख्त से लटका दे तो वो हाजत पूरी हो जाती है। आप यकीनन इस तावीज़ की बात कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। ये सामने क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये वो हस्तियां हैं जिनके जिम्मे इन चीजों का फैसला करना है कि किसको कितना रिस्क मिलना है, किसको औलाद मिलनी है या किसकी जिंदगी में खुशहाली आनी है। जैसा ये किसी के लिए लिख देते हैं अल्लाह के अमर से वैसा हो जाता है। इस सारे तकवीनी निज़ाम में 40 हस्तियां या अब्दाल मौजूद होते हैं। बहुत से वज़ाइफ की तादाद 40 इन्हीं की निस्बत से रखी गई है। मैंने एक बार एक महफिल में अनोखा मंजर देखा। उस महफिल में एक मुखलिस मजमा बैठा 40,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ रहा था और इन हस्तियों को हदिया कर रहा था। और ये हस्तियां उस महफिल में शामिल थीं, और जो भी उस महफिल में जो हाजत लेकर बैठा था ये हस्तियां उनकी हाजतों पर कबूलियत के फैसले लिख रहे थे। सूरह इखलास का 40,000 का अमल भी इन्हीं की निस्बत से 40,000 मरतबा पढ़ा जाता है। ये जो सामने अभी आए हैं ये कुतब हैं जिनके जिम्मे हुक्मरानों और बादशाहों का इंतखाब होता है। आपको इल्म है कि दुनिया में जितने भी हुक्मरान आते हैं उनका फैसला ये हस्तियां करती हैं। जितने साल जिस हुक्मरान ने हुकूमत करना है वो यही से फैसला होता है। जिस हुक्मरान के लिए ये हस्तियां जितना साल तय करती हैं उससे पहले दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती, और जब ये किसी को हटाने का फैसला कर लेते हैं तो कोई ताकत उसकी हुक्मरानी बरकरार नहीं रख सकती। और ये सब जिम्मेदारियां इन्हें अल्लाह ही के अमर से मिली हैं। इनका कोई अमल अल्लाह ताला की मंशा के खिलाफ नहीं होता और ना हो सकता है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि इनका इंतखाब हर दौर के नेक इंसानों या जिन्नात में से किया जाता है। इनके इंतकाल के वक्त क्या मामला होता है? इसके पीछे भी एक अनोखा निज़ाम है। इसमें आज़म की बरकत से कई सदियां पहले मेरी एक इंसान से दोस्ती हुई। वो कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि तकवीनी निज़ाम में मक्का के अमीर थे। बाबा मुझे बताएं अभी अगला बादशाह कौन होगा? एक तो तुम सवाल बहुत करते हो। बताएं ना बाबा। चलो मैं आपको 40 मरतबा सूरह बकरा हदिया करता हूँ। ये तुम्हारी आदत ना, बस इसी वजह से तुम जीत जाते हो। बस मैं इतना बताऊंगा, अभी जो बादशाह है इसकी बादशाहत का सिर्फ 1 महीना बाकी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा मेरा एक और सवाल है, इसका जवाब दे दें फिर मेरी आज की छुट्टी। मैं ये सोच रहा था कि जो तकवीनी निज़ाम के लोग होते हैं इनकी जिम्मेदारी कब ख़त्म होती है? चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने उनके साथ चलना शुरू कर दिया। काफी देर तक हम चलते रहे। चलते चलते ऐसे मनाजिर आ गए जो मुझे मक्का के नहीं लग रहे थे। हम काफी देर ऐसे चलते रहे। मैंने फिर उनसे पूछा, हम कितना दूर आ गए हैं? हम मक्का से 1900 मील दूर आ गए हैं। काफी देर चलते चलते हम एक खूबसूरत वादी में पहुंच गए। वो वादी ऐसी थी जैसे दुनिया पर जन्नत का टुकड़ा।
जवान, ये वादी दुनिया की नहीं है और ना ही ये जन्नत है। ये वादी अल्लाह ताला ने रिजालुल गैब के लिए बनाई है। जब अहले तकवीन रिजालुल गैब या अब्दाल में से किसी का आखिरी वक्त करीब होता है तो उसे कुछ दिन पहले उसकी खबर हो जाती है। वो इस जगह आ जाता है और ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। मेरा वक्त आ गया है, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। अल्लाह ने मेरा बदल पहले से बना दिया है। मैं 3 बातें तुम्हें कहता हूँ, इनके गवाह रहना। मैं अल्लाह ताला की तौहीद का कायल हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। दीन के सारे अहदो पैमा किए जो दीन के लिए ज़रूरी हैं। मैं अभी उनके दुख में रो ही रहा था कि मैंने देखा आसमान से एक रूहानी मखलूक आ रही है। मुबारक है वो शख्स जिसने अल्लाह की अमानत को संभाला और अल्लाह की अमानत की हिफाजत की और अल्लाह की अमानत का साथ दिया। आपने इन्हें आखिरी मर्तबा देखना है तो देख लें, हम इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। मैंने उन्हें आखिरी बार गले से लगाया और देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गई। मैं वहां हैरान और परेशान खड़ा था कि अब मैं वापस कैसे जाऊं। तभी मुझे वापस उन बुजुर्ग की आवाज आई, जवान, तुम्हारा वक्त यहाँ पूरा हुआ, अब यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन मैं कैसे जाऊं? मुझे तो ये इल्म भी नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। तुम जिस सिमत से यहाँ आए थे उसी सिमत में वापस चलना शुरू कर दो। मुझे फना है, लेकिन उस अल्लाह को फना नहीं जो इस निज़ाम को चला रहा है। वही अल्लाह तुम्हें वापस ले जाने पर भी कादिर है। फिर मैंने वहां से वापसी का सफर शुरू किया और कुछ ही मिनटों में वापस मक्का पहुंच गया। अल्लाह अकबर, आप इसमें आज़म के जितने कमालात बता रहे हैं, मेरी हैरत और तजस्सुस बढ़ता जा रहा है कि आप मुझे भी वो इसम बता दें। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जो अगला राज मैंने आपको बताना है, इसका असर पूरी कायनात पर पड़ेगा। आपके हर साथी पर इसका असर होगा। जिस तक भी ये राज पहुंचेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अपना हाथ मेरे हाथ में दें और आंखें बंद कर लें। जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलना।